When I talk about response to stimuli, I hope you know the meaning of it. Okay? Response to stimuli. Samas? What do you understand by response to stimuli? Listen. Tropic movement in plants. Circulatory system. Tropic movement in plant. There is response to stimuli happening in the plant, but that change or the reaction, rather I would say, reaction is nothing but a growth. मतलब कोई एक स्टिमुलस आया तो चेंज होगा या रिएक्शन होगा, बट वो रिएक्शन किस रूप में होता है? कोई तो प्लांट का पार्ट है वो ग्रो हो जाएगा. This tropism can be positive, it can be negative. I can give you a very simple example for this to understand negative and positive. She is walking on the street. I call out her name. She has two choices. One, to wave back at me and then come and talk. Second is to ignore and go away. In this scenario, she waving back at me was a positive response. She ignoring me was a negative response. Same happens with this. Stimuli आया, अगर growth नहीं हुआ, negative. If growth happened, positive. Easy, as simple as that. This will not take 5 minutes also if you understand this process. Next, हमारे पास क्या क्या है अभी? We have stimulus and the stimulus are as simple as photo, then we have geo, then we have hydro. These are the three main stimulus. I am writing it as stimulus. And what is the difference between stimulus and stimuli? Stimulus singular, stimuli is plural. सारे एक साथ बोलोगे तो stimuli बोल दूंगी मैं. उधर मैंने पूरा लिख दिया plural. Whatever stimuli, whichever. Now let's talk about stimuli. The first one that we have is photo. Photo means light. Photo means light. Then we have geo. Geo stands for gravity. Okay, I'm writing so that you understand. Photo was light. Then we have hydro. I hope you know what's hydro. That is water. These are the three major ones. I'm writing it right here. Let's talk about the part of the plant. Part of the plant तो बहुत सारा है. Root, stem, leaf, flower, fruit, buds, node, whatever. But I'm taking the two most important, that is root and stem. Considerable यही दिखता है ज़्यादा. ठीक है? अब सोचो कि light के बारे में, अगर light is the stimulus that I'm talking about, the root always grows opposite to the light. Which light am I talking about? Sunlight. Sunlight आता है यहाँ से है. Root कहाँ पे grow होता है? Opposite. It grows away from the stimulus. So grow तो हो रहा है, but away from the stimulus. So it's called as the negative tropism. But which tropism? Phototropism. Negative phototropism. अगर मैंने ये सवाल पूछ लिया तो तुम लिखोगे the root exhibits negative phototropism, or you can write in a short form saying the root is negatively phototropic. Adjective form. Phototropism noun form, ये adjective form हो जाता है. Same way, if I talk about stem relating it to the photo, what will happen? The stem always grows towards the sunlight, and hence we say it is positively phototropic, or it shows positive phototropism. हो गया. Let me talk about gravity. The root always grows towards. The word I am using is towards the gravity, and the stem always grows away from the stimulus. The negative drop. कौन सा tropism? Geotropism. Geo. ये please लिखना पड़ेगा क्योंकि तुमने अगर tropism लिख लिया, तुमको पूरा concept पता है, तुमने सिर्फ tropism लिख दिया, it goes wrong. Which tropism are you talking about? Next, hydro. Which hydro or which water am I talking about? In the soil. हाँ, क्योंकि तुम आर्ग्यू तो कर सकते हो कि मैं पानी तो इधर भी है, वाटर वेपर. नो, ज्यादा पानी कौन सा आता है? कैपिलरी वाटर. ज्योग्राफी में शायद पढ़ा होगा, या तो सॉइल के बीच में जो पानी होता है उसको कैपिलरी वाटर. सो यस, यू आर ट्रू. Hydro is the water that we are talking about. The root always grows in the search of the water, so positive, and the stem grows away, क्योंकि वो stem नीचे नहीं जाता, वो तो ऊपर जाता है, so negative. So अगर तुमको ये समझ में आ गया है, can I summarize my answer for root and say that root is negatively phototropic, positively geotropic, and positively hydrotropic. The stem on the other hand shows positive phototropism, negative geotropism, negative hydrotropism. Done. ये concept अगर आएगा तो तुमको कोई भी अगर question आएगा तो you will be able to see the part of the plant and you will be able to write this. अगर मैंने question ऐसा पूछ लिया with the regards to phototropism and geotropism, describe the root, तो तुमको
तुमको सिर्फ ये लिखना है रूट के बारे में. So be sure what the question is asking you. ये हो गया. Okay, there is an activity given to you. I would like you to read to list, sorry, to go through that activity. And that activity, हाँ जी करेंगे ना, रुको. ये हो गया. ये क्या कर रही है? अगली. Okay, can you see this? Okay, look at this. यहाँ पे क्या लिखा गया है? This is the potted plant and this is also potted plant, but after it falls over. Now, if you look at this tilted one, ये ऐसे गिर गया ना पॉट, बट अगर इसके अंदर देखोगे तो तुम देख सकते हो कि रूट कैसे ग्रो हो रहा है, डाउनवर्ड्स. डाउनवर्ड्स क्यों? क्योंकि ग्रेविटी कहाँ होता है? नीचे की तरफ. एंड कैन यू सी द बेंडिंग ऑफ द स्टेम हैपनिंग सो दैट द स्टेम गोस अपवर्ड्स? इजी डन. So in any circumstances I can prove that the root grows downwards and the stem grows upwards. Ever have a look at this? Is this because of some chemical or just gravity? No, this gravity, yeah, this is also stimulated by all of this. तो ट्रॉपिज्म करवाता कौन है या ट्रॉपिज्म को इंड्यूस कौन करता है? ऑल दीस हार्मोन्स. आगे हेलियोट्रॉपिज्म में एक केस पढ़ेंगे. ओके, Have you ever looked at this particular setup? देखो ये सेटअप दिख रहा है, इसको बोला जाता है क्लिनोस्टैट. ये पूछा जाता है एग्जाम में कि ये कौन सा सेटअप है या ये क्या apparatus है. What you write it as? Clinostat. Can you see it's holding up the plant? Sorry, pot. A potted plant is held by a apparatus. Give me that bottle. Clinostat ऐसे काम करता है. सोचो ये potted plant है. नॉर्मली ऐसा होता है ना पॉटेड प्लांट. इसको मैंने लगा दिया, क्लैंप कर दिया इस पे क्लिनोस्टैट पे. नाउ देयर आर टू पॉटेड प्लांट्स, देयर आर टू क्लिनोस्टैट्स. वन क्लिनोस्टैट इज स्टेशनरी लाइक दिस, ओके, बट द अदर वन इज रिवॉल्विंग या रोटेटिंग, व्हाटएवर यू से. ठीक है, जो स्टेशनरी है ऐसा ही पड़ा है, ऐसा ही पड़ा. व्हाट यू विल सी, द रूट स्टार्ट्स ग्रोइंग डाउनवर्ड्स एंड द स्टेम विल स्टार्ट ग्रोइंग अपवर्ड्स. बट द वन दैट इज रोटेटिंग लाइक दिस, you know what will happen to that plant? It will grow normally in the straight line, straight axis. अब सोचिए कैसे हो रहा है. ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि every surface of the plant is getting equal amount of exposure to gravity also and to photo also. क्योंकि ये अभी ऐसा है तो इसको gravity यहाँ पे hit हो रहा है, ये इधर हो गया, यहाँ पे gravity hit होने लगा, तो every cell is growing equally. ठीक है, बट जो स्टेशनरी उसमें क्या हो रहा था, यहाँ का ग्रोथ ज्यादा स्टिमुलेटेड हो रहा था, इसलिए वो यहाँ पे ग्रो हो रहा था. हाँ, सेम ऐसा ग्रो हो रहा था. ये हो गया, समझ आया? क्लिनोस्टैट इज दिस एक्सपेरिमेंट wherein I can prove that. और इसका एप्लीकेशन क्या है? जिसके घर में हाउस प्लांट्स होता है ना, और तुम अगर सेंसिबल हो तो तुम ये कर दो, क्योंकि हाउस प्लांट तुमने ऐसा रखा है, विंडो उधर से आ रहा है सनलाइट, तो तुम्हारा प्लांट ऐसे ग्रो होने लगता है. तो तुमको अगर ऐसा नहीं ग्रो करवाना, उसको थोड़ा सा खाली ऐसे कर दो. एवरी टाइम यू विल सी द वन दैट हैज हाउस प्लांट्स ना, वो ऐसा घुमाते रहते हैं अपने प्लांट को थोड़ा. क्यों? क्योंकि अभी यहाँ था तो ये प्लांट ग्रो हो रहा था ये साइड, मैंने उसको ऐसा कर दिया, अब यहाँ से भी ग्रो इस तरह से होगा. सो देयर इज इवन ग्रोथ दैट वी हैव. ओके, दैट इज ट्रिगर्ड बाय ऑक्सीजन. आई विल टेल यू हाउ, बट आफ्टरवर्ड. दिस इज डन. नेक्स्ट, थिग्मोट्रोपिज्म. द वर्ड थिग्मोट्रोपिज्म तुमको पता है. थिग्मो का मतलब होता है टच और कांटेक्ट. सो इफ द ग्रोथ इज स्टिमुलेटेड बाय टच और कांटेक्ट, इट्स कॉल्ड एज थिग्मोट्रोपिज्म. Here you do not have positive and negative. You know why? Because only certain set of plants are given this virtue of थिग्मोट्रोपिज्म. तो अगर कुछ ही को दिया है तो पॉजिटिव नेगेटिव की क्या बात हो गई? समझ आया? Okay? So थिग्मोट्रोपिज्म does not have positive negative. It is just written as थिग्मोट्रोपिज्म. और अगर तुमको ऐसा कोई पिक्चर आता है तो you will just say which phenomena is depicted in the above picture? Thigmotropism is depicted in the above diagram or the picture. The excellent example given to you is about the tendrils. Have you ever seen tendrils? अपना bitter gourd होता है ना, उसमें tendril होता है. और किसमें? अरे एक चीज, I don't know the plant name, but एक leaf ही होता है, but छोटे-छोटे होता है, तो touch होता है तो बात हो जाता है. Touch me not plant. Mimosa pudica. You can say that. अभी माइमोसा पुडिका हमने पढ़ा है किसमें? वो टर्गर प्रेशर वाले में. तो टर्गर प्रेशर होता है, पर टर्गर प्रेशर सेट कौन करवाता है? दैट टच एंड कांटेक्ट. सो यू कुड से थिग्मोट्रोपिज्म. उसके अलावा द एक्सीलेंट एग्जांपल इज ऑफ टेंड्रिल्स. एवरीबॉडी हैज सीन मनी प्लांट.
तो मनी प्लांट अगर तुम देखो, मैंने मनी प्लांट अगर यहाँ रख दिया तो यहाँ उसको कोई सपोर्ट नहीं है, वो ग्रो होगा और वैसे गिर जाएगा पूरा मनी प्लांट। अब वो जाते जाते इफ यहाँ पे कोई एक ये है स्टैंड है या स्टिक है या कुछ, जैसे ही वो यहाँ पे आएगा ना, इट विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग अ लिटिल टेंड्रिल्स, दोस वायरी थिंग, कर्ली जैसे बाल होता है ना वैसा, एंड इट विल स्टार्ट coiling around the support and then it will start growing along the support. This is thigmotropism. That means the growth that occurs due to a touch or contact. The example given to you is Cuscuta plant with a picture given right there. Picture में तुमको क्या देखना है? Can you see that wiry plant? एक तुमको बीच में कुछ दिख रहा है, वो वायर मैं बता रही हूँ। Cuscuta plant is a parasitic plant by the way. Parasite का मतलब it depends upon the living host. Leech parasite है, समझ आता है? लीच अगर मुझे लग जाएगा तो मेरा खून चूस रहा है वो, इसीलिए वो जिंदा है, मैं तो जिंदा हूँ ना, मैं मर नहीं गई, समझ आया? So Cuscuta plant is that. Now Cuscuta plant क्या करता है? जो भी होस्ट होता है उसको कॉइल करता है और इसका न्यूट्रिशन लेता है. But again it needs a living plant ना, living host चाहिए उसको. हाँ जी. सारे क्लाइंबर्स आएंगे इसमें, सारे क्लाइंबर्स आएंगे. कोई नॉर्मल पोल पे नहीं होगा. होगा. आपने बोला Cuscuta plant is parasitic plant. हाँ. बाकी सारे पैरासाइटिक प्लांट नहीं. मनी प्लांट इज नॉट अ पैरासाइटिक प्लांट. तो मनी प्लांट तो तुम कहीं भी देखते हो ना, विंडो के ग्रिल पे नहीं आता, विंडो का ग्रिल थोड़ी लिविंग है. बट पैरासाइटिक प्लांट का और एक एग्जांपल तुमको साइड में देख के रखा है, दैट वन इज नॉन पैरासाइटिक, वन इज पैरासाइटिक. सो व्हेनेवर यू सी टेंड्रिल्स, द टेंड्रिल्स हेल्प टू ग्रो द प्लांट बाय द वर्च्यू ऑफ thigmotropism. Simple. Next, you know this, so I won't waste time with this. Chemotropism. Do you know about pollination? Pollination में क्या होता है? The end result of pollination is pollen grain landing over to the stigmatic surface. Are you able to see the stigmatic surface given up right there? Yes. It looks like something like this. ये ऐसा स्टिग्मा का surface है. Okay? Then there is style and then there is ovary. Okay? Ovary के अंदर क्या है? Ovule. तो ये तुमको पीछे दिया भी गया है. पागल हो गए ऐसा इसका लेवल करना है. ये तुमको आता है. This is what? Stigma. This is style and this is ovary. ये क्या है? Ovule. What happens ideally? There is a pollen grain that lands onto the stigmatic surface. Now pollen grains are microscopic. कितने ही सारे pollen grains आएंगे और लैंड करेंगे इस पे. But there is only one that will be able to produce a pollen tube. Pollen tube. Pollen grain से pollen tube बनना growth हुआ. और वो growth कैसे होता है? Possible. You know why? पढ़ा होगा तो तुमको याद होगा, स्टिग्मैटिक सरफेस स्टिकी होता है. स्टिकी क्यों होता है? क्योंकि उसमें दो चीज होता है, दैट इज शुगर एंड पेप्टोन्स. दिस इज गिवन इन दैट chemotropism पैराग्राफ, मार्क इट इंपॉर्टेंट. शुगर एंड पेप्टोन्स दिया गया होगा. यहाँ पे क्या होता है? शुगर और देखो गेमेटोफाइट क्या होता है? हाँ, गेमेटोफाइट is this female gametophyte, egg cell inside it. Okay, listen. Sugar and peptones are right here. They identify the pollen grain and they give a green signal for it to germinate. अगर इन्होंने इसको सिलेक्ट किया तो ये क्या करेंगे? इसको अलाउ करेंगे pollen tube बनाने के लिए. And that pollen tube will travel through the style and it will go to the ovary and then will enter the ovule. Is this the growth? Yes. This growth was supported by two chemicals. Which two chemicals? Sugar and बोला मत sugar chemical नहीं है. Sugar and peptones are like chemical indicators. So the growth occurring due to chemical stimulus is called as chemotropism. किसमें दिखता है? इसी में ही दिखता है. समझ आया? So अगर तुमको ये दिया गया होगा पिक्चर तो तुमको लिखना होगा chemotropism. जानबूझ के तुमको पूछा जाएगा which are the two stimulus. क्या लिखोगे? नहीं. Again it's only in this now. Specific होगा तो उसको क्या ही बोलेंगे? ठीक है? Two chemical stimulus या stimuli. Sugar and peptones दिया है. There is a question behind. Okay? Lastly we have heliotropism. Heliotropism a little box में दिया गया है. अब heliotropism क्या है देखो. Heliotropism is the movement of sunflower that moves along with the sun direction. अब ये कैसे हो रहा है सुनो. और सनफ्लावर बहुत अलग है. सनफ्लावर हमारा मुंह जितना बड़ा होता है. जो सनफ्लावर को कॉपी जैसा मिलता है ना बुके में, वो जर्बरा है, वो सनफ्लावर नहीं है. सनफ्लावर इतना बड़ा होता है तुम्हारे मुंह से बड़ा. अब सनफ्लावर में, and first of all, sunflower is not a flower, it's an inflorescence. Have you studied inflorescence as a word? To make it easier for you, inflorescence means many flowers together.
सनफ्लावर बोलने में एक सनफ्लावर है बट है बहुत सारे फ्लावर्स से बना हुआ। नाउ सनफ्लावर ऐसा होगा, ओके एग्जांपल ले लो, ये ईस्ट है ये वेस्ट है, व्हाट विल हैपन, ईस्ट से सन जाता है वेस्ट में, ओके नाउ जो ऑक्सीन हार्मोन है ना, मैंने ये पहले नहीं बोला था अब बोल रही हूँ, ऑक्सीन जो है दैट इज फोटोसेंसिटिव, फोटोसेंसिटिव का मतलब इट रिएक्ट्स और इट रन्स अवे फ्रॉम लाइट, इसको लाइट पसंद नहीं है, ठीक है, तो क्या होगा, सन कहाँ से आ रहा है, ईस्ट से आ रहा है, सो यहाँ पे उसका डायरेक्ट एक्सपोजर है, दिस पार्ट ऑफ द सनफ्लावर इज बेथिंग इन सनलाइट, तो यहाँ पे सारे ऑक्सीजन कहाँ चले जाएंगे पता है क्या, वो लोग क्या करने लगेंगे, यहाँ पे सेल एलोंगेशन करेंगे, ठीक है, इसीलिए सेल एलोंगेशन करने से वो बल्कि होने लगता है, इसीलिए वो फ्लावर धीरे 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 क्या होने लगता है, वेस्ट की तरफ झुकने लगता है, सो इट स्टार्ट्स, इट माइट हैव स्टार्टेड फ्रॉम हियर, सनफ्लावर ऐसा ही है, पर धीरे धीरे तुम देखोगे तो वो ऐसा हो जाएगा, तो वो सन के साथ, सन को तुम कंट्रोल नहीं कर पाते, but it will just run away, the oxygen will start running away from this part to that part, and in that course of time due to cell elongation and weight increase होने की वजह से वो सनफ्लावर पूरा झुकने लगेगा, तो तुमको देखने में ऐसा लगेगा मतलब कि वो सनफ्लावर के साथ साथ जा रहा है, वो साथ साथ नहीं जा रहा है, वो सनफ्लावर से भाग रहा है, but eventually it goes into this side west। तो कौन सा पार्ट बढ़ेगा, ऑक्सीजन बढ़ेगा तो ये ऊपर होगा ना, नहीं ये ऐसा है, अभी सनफ्लावर ऐसा है ना, तो यहाँ पे हो रहा है वो पूरा सनलाइट से, तो यहाँ का ऑक्सीजन सारे यहाँ भागेगा, तो दिस पार्ट विल हैव सेल एलोंगेशन, सो दिस विल बिकम हेवियर, इफ दिस बिकम्स हेवियर इट विल टर्न द फ्लावर दिस वे ड्यू टू इट, दैट्स द रीजन यू विल सी सनफ्लावर ऐसा जाएगा। हैव अ लुक एट द टाइम लैप्स वीडियो, तो जब वापस जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा, नहीं वो लो हो जाएगा, सनफ्लावर का सॉरी सनलाइट का इंटेंसिटी भी तो लो हो जाएगा ना शाम होने में, तो सनफ्लावर के एक साइड से बड़ा होता है, लंबा होता है, नहीं थोड़ा सा ग्रोथ इंक्रीज होता है, लंबा नहीं हो जाएगा, एलोंगेशन में टाइम लगता है, पर उसका वेट थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि जरा जरा एलोंगेशन हो रहा है, दैट्स इट, ऐसा नहीं होता कि टेढ़ा सा हो जाएगा। and then what happens when it is at noon? इट्स एट नून ना, तो नून में ये जो नीचे वाला पार्ट होता है ना वहाँ पे सारा माइग्रेट होने लगता है, इसलिए इट गेट्स स्ट्रेच लाइक दिस थोड़ा सा, तो तुमको ऐसा लगता है वो सनफ्लावर को एकदम देख रहा है बढ़िया, तो ऐसा नहीं है, वो तो उसके पीछे जाके रुक रहा है, इसलिए इट्स जस्ट गेटिंग स्ट्रेच, नाउ इट गेट्स अगेन लाइक दिस, ओके, सो द मूवमेंट ऑफ सनफ्लावर इज एक्सप्लेन्ड बाय द हेलियोट्रोपिज्म, हेलियोट्रोपिज्म और कहीं नहीं लिखोगे तुम लोग, सनफ्लावर में ही लिखोगे सिर्फ, यस सो आपको इट्स योर सनलाइट का यहाँ पे ऑक्सीजन चले जाता है, हाँ, सो जब सनलाइट इस तरफ जाता है वेस्ट में तब इधर आ जाएंगे फिर से, तब इधर आ जाएंगे या पीछे के साइड आ जाएंगे, सो देन इट ड्रूप्स आल्सो लिटिल, थोड़ा सा एक समझ आया, हाँ थोड़ा सा ड्रूप हो जाएगा, ओके नेक्स्ट टाइम आई गेट अ लिटिल वीडियो, लिटिल क्लिप इज देयर, टाइम लैप्स का क्लिप है तो उसमें तुम देख पाओगे। Can you explain the movement of fungi in chemotrophism? क्या लिखा है पढ़ो जरा। The movement of fungi growing towards the areas nature in food is also chemotrophism. ओके सो इफ यू टॉक अबाउट फंजाई, फंजाई किस पे ग्रो होता है, डेड डीकेइंग ऑर्गेनिज्म पे, डेड डीकेइंग ऑर्गेनिज्म हैज अ लॉट ऑफ स्टार्च एंड शुगर, तो शुगर मैंने बोला एक स्टिमुलस है, तो फंगस में भी तो होगा ना ये सब, जो फंगस है उसमें भी तो ये ग्रोथ हार्मोन्स है थोड़े से, सो दीज हार्मोन्स आर एक्टिवेटेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दैट स्टार्च एंड शुगर, इसीलिए तुम फंगस कहाँ ग्रो होते हुए देखोगे जहाँ पे स्टार्च है, डू रिमेंबर दैट ब्रेड मोल्ड, ब्रेड अगर रख दोगे पानी छिड़क के थोड़ा सा तो फंगस ग्रो होने लगता है, एंड एनी